नमस्कार दोस्तों, क्रिप्टो मनी यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। और अगर आप रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। और क्लिक करने के बाद अगर आप बेल आइकन बटन पर भी क्लिक करेंगे तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे। तो चलिए, आज की जो सबसे बड़ी खबर आई हुई है वो क्या है कि अरुण जेटली जी क्या कह रहे हैं। अरुण जेटली जी कह रहे हैं कि बिटकॉइन नॉट अ लीगल टेंडर। लीगल टेंडर कहने का मतलब हो गया ये करेंसी नहीं है भारत में। बिजनेस टाइम्स में भी यही खबर आई है कि बिटकॉइन नॉट कंसिडर्ड लीगल टेंडर इन इंडिया, सेज अरुण जेटली। फिर एक और खबर ये है कि सेम बात, पर इसमें थोड़ा सा ये बताया है कि क्रिप्टो करेंसी नॉट लीगल टेंडर एंड देयर इज नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट दिस। प्रोटेक्शन कहने का मतलब हो गया कि जैसे सेबी आपको प्रोटेक्ट करती है उस तरह से आपके मनी को वहां यहां पे आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी अगर आप बिटकॉइन या फिर किसी भी करेंसी को खरीदते हैं या बेचते हैं। सेम हिंदी में भी जागरण में यही खबर है कि अरुण जेटली ने कहा लीगल टेंडर नहीं है बिटकॉइन। इकोनॉमिक टाइम्स में भी वही है, अरुण जेटली ने फिर चेताया बिटकॉइन भारत में लीगल टेंडर नहीं है। वन इंडिया में भी यही है। यहां पे अरुण जेटली का राज्यसभा में जवाब, भारत में बिटकॉइन को कानूनी मान्यता नहीं। और तीसरा जो है वो है कि बिटकॉइन और अन्य वर्चुअल करेंसी भारत में गैर कानूनी, वित्त मंत्री ने कहा। और ये खबर न्यूज 18 की है। तो चलिए वो देखते हैं कि अरुण जेटली जी ने राज्यसभा में क्या कहा। वो उनकी जो स्टेटमेंट आई है उसके बारे में उन्होंने राज्यसभा में क्या कहा है, तो मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं। The cryptocurrencies have been compared to the pyramid schemes and the economic bubbles which have affected a lot of people who joined that. So I'd like to know whether there are any consumer protection available to the people who are already using cryptocurrencies. And some agency says that they will accept bitcoins. So what is the government planning to protect people? Minister. Since 2013, 24 December 2013, both the Reserve Bank of India and the Government of India have consistently maintained a position and have made it public repeatedly that this is not a lawful legal tender in India. And therefore, that protection is not available. It is operating online. That's a separate matter. There have been expert groups which have been set up how to deal with this situation, whose report is now awaited. But this is not a legal tender, and this is the clear position which has been set out even recently, as late as the 29th of December by the Government of India in its press release. So from 2013 to 2017, this has consistently been the position of both the central bank and the government. Second supplementary. Whether the government is aware of the threat of cryptocurrencies being used for illegal purposes, and I mean, it's been found that some terrorist groups are also finding it very convenient to use these bitcoins. So what are the measures taken by the government to stop this? And I also like to know if they have any data on the crimes. Minister. Sir, one of the features of cryptocurrency has been that there is a lack of dependence on the state, and that this functions with a certain amount of anonymity. It functions within the virtual community which is created and enjoys the trust of that virtual community itself. Now, it operates online through blogs, it operates through WhatsApp groups, etc. And there are several kinds of cryptocurrencies. In fact, there are all over the world 785 virtual currencies which are today in operation. And there are about 11 such exchanges which have been online identified in India. There was an interdepartmental committee which was set up in the year 2016 that examined the matter, and that decided that certain cautions be taken and people at different levels be given a caution or a warning, those who engage in this activity, that there is no lawful protection, which was accordingly done. And now how in future it is to be dealt with in India, there is an expert group under the Secretary Department of Economic Affairs which is functioning, whose report is now awaited. Thank you. Sri Raju Chandrasekhar. That cryptocurrencies are not legal tender, and I'm assuming he also means that it is therefore illegal.
would he consider an immediate direction to banks, credit cards, etc., while the committee is still doing its report, to prohibit purchases and transactions in cryptocurrencies with immediate effect? The government is awaiting the report of the expert group as to what are the steps to be taken. And the reason being that there are such large number, as I mentioned, cryptocurrencies globally which are operating, and they can operate from any part of the world because they virtually operate in the virtual group itself. And therefore, rather than take any knee-jerk reactions immediately, we are awaiting for that report, and once that report comes, only then the measured steps which are to be taken in this regard will be taken. Shri Amar Singh. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि बिना नाम लिए कहना चाहूँगा कि बहुत बड़े बड़े लोग जो करोड़ों रुपया कमाते हैं प्रचार से, वो लोग भी बिटकॉइन के धंधे में शामिल हैं। उनके नाम पनामा और पैराडाइज जैसे स्कैंडल में भी आए हैं। हमारे पड़ोसी देश में आप कहते हैं कि लीगल टेंडर नहीं है, यानी जाली नोट की तरह है, और बगल के देश में और विश्व के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष वो अपना पद खो बैठे हैं, लेकिन न पनामा में कुछ होता है, न पैराडाइज में कुछ होता है, न बिटकॉइन में कुछ होता है। क्या कोई प्यूनिटिव एक्शन ऐसे लोगों के विरुद्ध लेने की आप कृपा करेंगे, या कोई प्रावधान ऐसा बना रहे हैं, या कमेटी के रिपोर्ट की प्रतीक्षा में है? मंत्री जी। सभापति जी, ये दोनों विषय अलग अलग हैं। जहां तक पनामा और पैराडाइज का विषय है, उसमें जिन लोगों के या जिन एंटिटीज के नाम उसमें आए थे, उसके संबंध में एकदम उपयुक्त जांच भी हुई है, और उनमें से जिन लोगों के अकाउंट्स गैर कानूनी उसमें पाए गए, उनके खिलाफ जो जो कार्रवाई कानून में, यानी एडजुडिकेशन, असेसमेंट, क्रिमिनल लॉ एक्शन इत्यादि है, वो कार्रवाई उनके खिलाफ उन कानूनों के हिसाब से हो रही है। जहां तक बिटकॉइन का सवाल है, क्योंकि ये पूरे विश्व के अंदर एक नई परिस्थिति पैदा हुई है और केवल भारत की सामने चुनौती नहीं है, तो पूरे विश्व का अनुभव भी देखते हुए भारत ने इसको किस तरीके से निपटना है, इसके संबंध में जैसा मैंने कहा कि पहले प्रश्न के उत्तर में अध्ययन सरकार इस विषय में कर रही है कि क्या कार्रवाई कर सकते हैं। यहां पे दो लोगों ने ये सवाल पूछे हैं बिटकॉइन के बारे में कि भारत सरकार क्या कर रही है, और दोनों ये जानना चाहते हैं राज्यसभा के जो सवाल उठाया गया। एक जगह अमर सिंह ने पूछा है कि अमिताभ बच्चन के बारे में कि उन्होंने पैसा वहां लगाया और वो कमा रहे हैं। पनामा वाला केस के बारे में भी उन्होंने बात की। पर यहां पर भी अगर देखा जाए तो अरुण जेटली जी साफ साफ अभी भी कुछ नहीं कह रहे हैं। उनका सिर्फ यही कहना है कि हमने कमेटी बिठाई हुई है और वो कमेटी जो है वो देख रही है कि इसको लीगल देना है या इलीगल करार देना है या इसको कमोडिटी की तरह रखना है। तो ये भ्रम में अगर जब तक हम रहेंगे, लोगों का पैसा इसमें लगता रहेगा, और अगर सरकार इसको प्रोटेक्शन नहीं देती है तो भी देखा जाए तो लोग पैसे लगा रहे हैं, उसमें उनका नुकसान हो सकता है। और मेरे हिसाब से सरकार को इस समय अपना बता देना चाहिए जनता को कि वो क्या नजरिया रखती है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट पिछले साल जो 18 से 20 बिलियन डॉलर का था, आज वो 750 बिलियन डॉलर का क्रॉस कर चुका है, और 2018 बहुत बड़ा माना जा रहा है कि मार्केट बन जाएगा क्रिप्टो करेंसीज का। तो इतने बड़े मार्केट में यहां हम दूर रहें तो देश का नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर लोग कमाई कर रहे हैं तो देश का भी फायदा हो सकता है। और अगर इसको बैन किया गया तो आप ये ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं क्रिप्टो करेंसी में जिसको अगर हम नहीं इस समय छुएं तो उसमें भी हमारा नुकसान है। और अगर इसको लीगल करार दिया जाता तो एटलीस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक क्लियर कट सिग्नल मिल जाएगा, भाई आप टैक्स जो है सीधे तरीके से ले सकते हैं। बाकी आपका जो भी नजरिया है, आप अपना नजरिया नीचे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, इसको कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप रेगुलर अपडेट चाहते हैं वर्चुअल करेंसीज के ऊपर, क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, बिटकॉइन, इथेरियम, इन सब के ऊपर। तो आज का जो हमारा ये एपिसोड है मैं यहीं पे खत्म करता हूं। शुक्रिया आप सबका।